न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। बराकर फाड़ी हवालात में एक युवक की मौत के बाद 5 पुलिस अधिकारियों और सिविक कर्मियों पर गिरी गाज, कमिश्नर ने किया निलंबित। 5 जन पुलिस ऑफिसर हमार कमिश्नरेट থেকে এটা सस्पेंड करा हुआ है। आसनसोल उत्तर थाना के नुनिया नदी पर बने अवैध पुलिया को सिंचाई विभाग ने तोड़वाया। बीते 6 जुलाई को कुल्टी थाना के बराकर फाड़ी में चोरी के संदेह में बराकर फाड़ी पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए गए अरमान अंसारी की हवालात में मौत के बाद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर अजय कुमार ठाकुर ने इस घटना में शामिल 5 पुलिस कर्मियों और 5 सिविक कर्मियों को निलंबित कर दिया है। एक प्रेस विज्ञप्ति देकर इसकी जानकारी दी गई है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बराकर पीपी में हिरासत में मौत की घटना पर 5 अधिकारियों को उनके घोर कदाचार और कर्तव्य की उपेक्षा के कारण निलंबित कर दिया गया है। घटना में कथित रूप से शामिल 5 सिविक वॉलंटियर को कुल्टी थाना दिनांक 6/7/2021 के मामले संख्या 326/21 के तहत दर्ज मामले की जांच के अंतिम परिणाम के लंबित होने तक हटा दिया गया है। विभागीय कार्रवाई के तहत निलंबित किए गए अधिकारियों में एसआई अमरनाथ दास, एसआई प्रशांत पाल, एसआई सुभाष दास, सशस्त्र एसआई अली रजा और एएसआई संतोष कुमार तिवारी हैं। इस घटना से हटाए गए सिविक वॉलंटियर के नाम रवि राम, कार्तिक रुईदास, पुष्पल बैनर्जी, मन्नू यादव और रंजीत साव हैं। गौरतलब है कि 6 जुलाई को अरमान अंसारी की मौत के बाद स्थानीय लोग इस घटना से आक्रोशित हो गए और बराकर फाड़ी पर ईंटाबाजी कर पुलिस गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। तब पुलिस कमिश्नर अजय कुमार ठाकुर दल बल के साथ वहां पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसमें जो भी पुलिसकर्मी शामिल है उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी, इसका निष्पक्ष जाँच भी करवाया जाएगा। अपने आश्वासन पर अमल करते हुए इसमें लिप्त पुलिस और सिविल कर्मियों को जाँच होने तक निलंबित कर दिया है। इसी मामले में बराकर फाड़ी पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर पिटाई करने के गंभीर आरोप से घायल श्यामल बावरी के परिजनों से एडीसीपी बेस अभिषेक मोदी और कुल्टी एसीपी उमर अली मौला ने मुलाकात की। दोनों पुलिस अधिकारियों ने श्यामल बावरी के परिजनों से पूछा कि उन्हें पुलिस से क्या सहायता चाहिए। এখানে ঘটনাটা হয়েছে বরাকর ফাড়িতে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এখানে 5 জন পুলিশ অফিসার আমার কমিশনারেট থেকে এটা सस्पेंड करा হয়েছে। ডিপার্টমেন্টাল অ্যাকশন হয়েছে, ওদের ডিসিপ্লিনারি একটা ইনকোয়ারি করা হবে। এছাড়া 5 জন সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম পাওয়া গেছে যারা যুক্ত আছে, ওদের ডিমোবিলাইজ করা হয়েছে। এটা ইমিডিয়েট অ্যাকশন এটা ডিপার্টমেন্ট তরফ থেকে করা হয়েছে। তারপরে একটা কমপ্লেন্ট পাওয়া গিয়েছিল, কমপ্লেন্ট উপরে একটা এফআইআর করা হয়েছে। এফআইআর ইনভেস্টিগেশন কমিশনারেটের যে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট আছে ওরা ইনভেস্টিগেশন করছে। এছাড়া কিছু লোক এক দো और जो लोग আছে ওরা দেখা গেছে কি ইয়ে আছে, হসপিটালে ভর্তি আছে, ওদেরও যতটা সাহায্য করা হোক ওদের ট্রিটমেন্টে ওটা করা মানে ওটাকে আপনার তরফ থেকে করা হবে, ওটা ওদের সাহায্য করা হবে। পুলিশের তরফ থেকে করছে, পুলিশ সাহায্য করছে। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. আসানসোলে বর্তমানে সদস্য ছিলেন তপস্বীরা, তাকে নাকি আসানসোল পৌর নিগমের থেকে বন্ধ করে দেওয়ার আসার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশ না, একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যতদিন না ইনকোয়ারিটা কমপ্লিট করা হচ্ছে ওনার বিরুদ্ধে একটা তদন্ত চলছে। এই তদন্ত যদি প্রশাসনিক স্তরের লোকের বিরুদ্ধে হয়, তার বিরুদ্ধে যদি অ্যাকশন না নেওয়া যায় তাহলে কর্মচারীদের বিরুদ্ধে তো পরবর্তীকালে নেওয়া যাবে না। সেই জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যাতে উনি না এসে আমরা দেখি কেন কী ঘটনা ঘটেছিল। আমরা তো দেখতে পাচ্ছি চারদিকে ব্যস্ত হয়েছে বিভিন্ন কারণের জন্য। তো আজকেও আবার চারিদিকে বৃষ্টি হয়ে গেছে। আমাদের মেম্বাররা বসে আমরা 2-3 দিনের মধ্যে যে ডাক্তার, নার্স এবং অবশ্য মরার বিরুদ্ধে আমাদের কি আলোচনার মধ্যে সিদ্ধান্ত হবে সেগুলো আমরা ফাইনাল করছি। উনি বলছেন কি আমাদের কাছে চিঠি এসেছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা উত্তর দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু আমার কাছে এইরকম কোনো চিঠি আসেনি কি কাল থেকে আপনি অফিসে আসবেন না, গাড়ি ইউজ করবেন। দেখুন, আমরা তো চিঠি করে দিচ্ছি, উনি চিঠি দিতে অনেক অস্বীকার করেছেন। কালকে ওনাকে চিঠি দেওয়ার জন্য ওনার হাজব্যান্ডের কাছে সকালে গেছিল, তারপর ওখান থেকে বরাকর গিয়েছে, বরাকরও ওনাকে পাওয়া যায়নি। তারপরে ওনাকে আজকে আবার সকালবেলায় চিঠি ওনার বাড়ি গেছে,
সেখানেও ওনাকে পাওয়া যায়নি এবং বাধ্য হয়ে পরবর্তীকালে পোস্ট করা হয়েছে এবং পোস্ট করে যদি আজকে উনি পেয়ে যায় ভালো, না হলে থানাতেও বলে দেওয়া হয়েছে ওই চিঠি ওনার বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে। আর না হলে লাস্টের দেওয়ালে টাঙিয়ে দিতে হবে। आसुसोर शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के धतका स्थित तापसी बाबा मंदिर के पीछे नुनिया नदी पर बने अवैध पुल को गुरुवार को जिला कलेक्टर पीठ और सिंचाई विभाग के द्वारा पुलिस के सहयोग से तोड़ दिया गया। इस संबंध में जिला शासक विभू गोयल ने बताया कि बहुत लोगों के द्वारा हमें पुलिस विभाग और सिंचाई जल पुल विभाग को शिकायत मिली थी कि धतका में जो पुल बनाया गया है उसकी संरचना सही नहीं है, भविष्य में कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है और उस पुल निर्माण के लिए कहीं से अनुमति भी नहीं मिली है। वह पुल अवैध रूप से स्थानीय लोगों ने बनाया है। भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसके लिए उस पुल को तोड़ने का कदम उठाया गया। इसके बाद हम विचार करेंगे कि नदी के उस पार जो 2-3 बस्तियां हैं उनको कैसे जोड़ा जाए। वास्तव में वह पुल न होकर एक कलवर्ट था जिसे तोड़ दिया गया क्योंकि उसकी संरचना कंक्रीट नहीं थी, वह अवैध था। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले नगर निगम और सिंचाई विभाग में कुछ स्थानीय लोगों के शिकायत के बाद इस अवैध पुलिया को तोड़ने के लिए जब सिंचाई विभाग के कर्मचारी पहुंचे तो चासी पाड़ा और माझी पाड़ा के लोगों ने भारी विरोध किया और सिंचाई विभाग और निगम कर्मियों को पुलिया तोड़े बिना बैरंग वापस लौटना पड़ा था। लेकिन गुरुवार को सिंचाई विभाग और जिला कलेक्ट्रिक विभाग के कर्मचारी भारी पुलिस बल के साथ पुलिया के पास पहुंचे और पुलिया को तोड़ दिया। कथित तौर पर बताया जाता है कि पारस राय नामक एक जमीन विक्रेता का जमीन नदी के उस पार काफी है। वह उस जमीन को प्लॉटिंग किए हैं। उस जमीन का दाम बढ़े इसके लिए उन्होंने पुलिया निर्माण कार्य शुरू करवाया। इस संबंध में नगर निगम प्रशासन अमरनाथ चटर्जी का कहना है कि पारस राय ने जो प्लॉटिंग किया है उस प्लॉटिंग के लिए प्रति कट्ठा एक निर्धारित शुल्क है जिसे नगर निगम को देना पड़ता है। वह शुल्क भी वह नहीं दिए और न ही वे पुल निर्माण की अनुमति लिए हैं। वह पुलिया अवैध है। हालांकि पारस राय ने भी यह स्वीकार किया कि पुलिया निर्माण स्थानीय लोगों की मदद से की गई है, इसका किसी से अनुमति नहीं लिया गया है। এটা আরো আগেই ভাঙা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমরা সেরকমভাবে করতে পারিনি। একটু ইরিগেশনের প্রবলেম ছিল, ইরিগেশন আমাদের দায়িত্ব দিয়েছিল। মন্ত্রী এটা রেকমেন্ড করেছিলেন, মন্ত্রী চাইছিলেন না যে এটা কোনোভাবেই যেন ওখানে ওর উপর টিকে থাকুক। তো আজকে ভেঙে দিয়ে অনেক মানুষের উপকার হবে, এতে জলটা নদীর উপর দিয়ে যাবে। হ্যাঁ, ওখানে ধরুন নদী কতটা চওড়া সেটা আমরা জানতে পারবো। এরকম অনেক নদীর উপরে যারা যারা আছে এরকম অনেকেই ভাঙা যাবে আগামী দিনে। এই যে ইনলিগালভাবে করে দিয়েছিল, আপনাদের এই বিষয়টাতে কবে জানা গেছে? এটা ইলিগালটা করে দিয়েছিল, এটা আমরা জানতে পেরেছিলাম প্রায় ফেব্রুয়ারি মাসে নাগাদ। তো সেই সময় আমাদের ক্ষমতায় বসার পরে আমরা চিঠি চাপাটি করেছিলাম, কিন্তু তারপরে ইলেকশন কমিশনারের জন্য আমাদের সরে যেতে হয়। তো তারপরে আবার যখন আমরা রিইনস্টেন্ট হলাম তখন আমাদের এটা মন্ত্রী সাহেবের রেকমেন্ডেশন চিঠি এলো এটাকে দেখার জন্য, এবং মন্ত্রী সাহেবের চিঠির মাধ্যমে আমরা এটাকে পুলিশ পাঠাই। তো সেদিনকে পুলিশকে তারা ভাঙতে দেয়নি, লোকাল লোক নানা রকমভাবে
জবরদস্তি করে রেখেছিলেন, কিন্তু আজকে সেটা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এইরকম যদি আর কোনো জায়গায় পাওয়া যায় ইললিগাল, তাহলে কি এটা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই করা, যেরকম ইললিগাল তোমরা করো না, ইললিগাল করলে কিন্তু প্রশাসন পারে করতে, ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট করতে পারে, ডিএম সাহেব করতে পারে, এটা কিন্তু আমরা প্রমাণ করি। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि और रोजमर्रा की वस्तुओं के महंगाई के विरोध में गुरुवार को AICCTU एवं प्रगतिशील फोरम फ्रंट पश्चिम बंगाल शाखा के संयुक्त तत्वाधान में सिटी बस स्टैंड के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी अपने हाथों में अपनी मांगों का लिखा तख्ती लेकर प्रदर्शन किए। इस दौरान एक्टू नेता ने कहा कि देश के सभी राज्यों में पेट्रोल का दाम सैकड़ा पार कर चुका है, डीजल भी सैकड़ा के करीब पहुंच चुका है, रसोई गैस के दाम भी आसमान छूने लगा है। केंद्र सरकार अंधी, गूंगी और बहरी हो गई है। सरकार को आम जनता की परेशानी नहीं दिख रही है। केंद्र सरकार केवल अपने मनमानी करने पर तुली है, इसलिए ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना जरूरी है। রান্না গ্যাস ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি প্রতিবাদে আমরা এখানে হটন মোড়ে এক প্রতিবাদী সভা করছি। সাথে সাথে পরশুদিন স্টেশন শ্রমিককে রাষ্ট্র দ্বারা হত্যা করা হয়েছে, সে হত্যা প্রতিবাদ আমরা করছি এবং হত্যা যারা করেছে সে দোষীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং ইএপিএ মতন কালো কানুন বাতিল করার দাবি আমরা জানাচ্ছি। এই যে পেট্রোল ডিজেল যে বারবার দাম বাড়ছে, এখন তো মানে সেঞ্চুরিও হয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে, তো এই বিষয়ে আপনি কি করতে চাই? কর্পোরেটের জন্য এই সরকার কাজ করছে, কর্পোরেটের স্বার্থে পেট্রোল ডিজেল রান্না গ্যাসের দাম হুড়মুড় করে বাড়ি চলেছে, সব কিছু কর্পোরেটের স্বার্থে কাজ করছে। এই কৃষক আইন, কালা কানুন, শ্রমিক বিরোধী কালা কানুন, এই সবটা কর্পোরেটের স্বার্থ করছে। बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु के 108वीं जयंती के अवसर पर गुरुवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जिला ग्रंथागार के समीप एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसके पहले वहां उपस्थित माकपा नेताओं ने ज्योति बसु की तस्वीर पर फूलमाला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर माकपा नेता पार्थ मुखर्जी, अमिताभ मुखर्जी, पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी समेत कई माकपा, DYFI, SFI कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर आयोजित रक्तदान शिविर में 35 कार्यकर्ताओं ने अपना रक्तदान किया। नेताओं ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और स्मारक चिन्ह देकर प्रोत्साहित किया। इस मौके पर नेताओं ने कहा कि ज्योति बसु के 108वीं जयंती को पूरे राज्य में माकपा स्मृति दिवस के रूप में मना रही है। पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में आज 7 स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कॉमरेड ज्योति बसु का 108वां जन्मदिन का उपलक्ष्य में CIT सह जितना वामपंथी गण संगठन उसका उत्तर में आज ब्लड डोनेशन कैंप डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में हो रहा है। आज हम लोग 50 को ब्लड देना चाहते हैं। ब्लड डोनेशन का मतलब ये नहीं है खाली ब्लड देना, ब्लड डोनेशन एक सिंबल है। ज्योति बसु ने ये आम जनता का लिए, आम आदमी का लिए जो काम किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इसका प्रतिकी आज कर्मसूची हम ले रहे हैं। अगले दिन में हम लोग और ज़्यादा करके कर्मसूची लेके उनका भावना का जो सम्मान देना चाहिए वो सम्मान हम लोग देंगे।